Okay, so I am back, and today we are going to discuss about a topic called as organic chemistry. So this topic typically everyone finds it little complicated as such, but it is not complicated, and that is what if you watch all the my videos, then definitely even you will find it is not at all complicated. It is very easy, just logic and some memorization, and then it's done. Okay. So first, before I begin with the chapter, पहले I will just introduce you to the chapter कि क्या है chapter में. So now 10th standard organic chemistry. Why I written 10th standard? Because what we have it in 10th standard is 1% of what is there ahead. तो ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD जैसे कह सकते हैं जो हमें है 10th में. But still we can divide it roughly into two parts. First is nomenclature and second is preparation. Now nomenclature क्या है? Nomenclature means naming. Naming of what? Naming of carbon compounds or organic compounds. Not carbon, organic. Naming of organic compounds, you can say. And preparation, in which we have a lot of reactions which we have to memorize. Okay. So let us start with the actual chapter now. So first I'm going to go एकदम starting basics से. बहुत videos जाएंगे इसके, but this is an entire new concept, so the better, the slower we do it is better. Okay. So now organic, ये नाम से हमें पता चलता है समथिंग रिलेटेड टू. दिस इज नॉट देयर इन टेक्स्ट बुक, आई एम जस्ट introducing the topic. Something related to plant or animals. Something related to living beings, we can say, which has life. So क्या हुआ था? Earlier people used to think that organic compounds are those compounds which are obtained only from living sources. जो भी लिविंग सोर्सेस से हमें मिल रहा है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऐसे पहले के लोगों की मान्यताएं थी. पर फिर बाद में क्या हुआ कि लेटर ऑन पीपल डिस्कवर्ड न्यू कंपाउंड, जैसे कि अभी प्लास्टिक है. प्लास्टिक प्लास्टिक है, देन पॉलीथीन. तो पॉलीथीन के नाम में ही इथीन है, सो इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ना. दैट्स व्हाई प्लास्टिक इज आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो व्हाट हैपेंस इज कि उन्होंने पॉलीथीन वगैरह ये कंपाउंड्स ना लैब में बनाए हैं. लैब. And then the definition of organic compounds, like something related to living beings or obtained from living beings, it was it was considered as false. Okay, so first we need to understand this. ऐसा नहीं सोचना कि organic है, it has to be related only to living beings. No, organic है. The new, according to new definition, organic means it has to be related to carbon. कार्बन के साथ कुछ ना कुछ खेल होगा, ऐसा ही दिमाग में रखना. ओके. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स भी इसलिए ही कहते हैं बिकॉज वी कांट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग बींग्स और देम, बिकॉज वी नो कि लैब में भी बना सकते हैं. सो वी कॉल इट एज केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स. वाई स्पेसिफिक इज अगेन इंटरेस्टिंग थिंग. अभी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? नहीं है ना. और दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स. सो we have, if you look in the textbook, there also they have given the नीचे छोटा सा एक्सेप्ट दिया है, एक्सेप्शन दिया है कि एक्सेप्ट ऑक्साइड कार्बोनेट्स कार्बाइड्स. एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑक्साइड carbonates and carbides. Rest all carbon compounds are typically organic compounds. So then we have another term called as hydrocarbon.
कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिंपल, जैसे हो गया CH4, मीथेन या इथेन, ये सब है हाइड्रोकार्बन्स। नाउ वी कम टू द मेन थिंग कि why carbon color is not going. Okay. Why carbon ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पहली वाली डेफिनेशन तो रूल्ड आउट हो गई। फिर दूसरे वाली डेफिनेशन में हमने क्या किया, केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स। वाई कार्बन, मैं सोडियम लूंगा, मुझे सोडियम को स्टडी करना है, मैं पोटेशियम लूंगा। इसका आंसर है कि कार्बन कि सोडियम, पोटेशियम, बाकी जो भी एलिमेंट्स है उनके कितने कंपाउंड्स बनेंगे, हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, बट कार्बन मेक्स zillions, zillions of compounds. It makes how many zillions? Abhi zillions, if you don't know it, go on Google and search how big is a zillion. We have learned till billions. Check what is a zillion. So carbon makes zillions of compound, मतलब ये हर जगह है, हमारे बॉडी में भी कार्बन है, एनीथिंग, प्लांट्स में तो है ही कार्बन, एवरीथिंग हैज कार्बन इन इट, कार्बन के बिना नथिंग कैन बी मेड, ऐसा वी कैन generalize. So because it makes zillions of compounds, it is essential कि we study these compounds. And next question which may come is why so many compounds? सिर्फ कार्बन ही क्यों बनाता है, बाकी पोटेशियम विटेशियम भी तो बना सकते हैं, सो कार्बन में क्या खास बात है? इसके लिए देर आर couple of answers and terms which we have to understand. First is tetravalency. Tetravalency. Abhi tetravalency is an English word which, if we can break it into two, we will understand. Tetra is 4, valency is, we know valency, number of hydrogen atoms which can combine with or displace one atom of the element forming a compound. तो इसके 4 वैलेंसीज है, मतलब कार्बन के 4 वैलेंसीज है। सो ये इधर के एक कंपाउंड को लेगा, इधर एक लेगा, इधर एक लेगा, इधर एक लेगा, नॉट नेसेसरी हाइड्रोजन है, कोई भी ले सकता है। मतलब सिर्फ सोचो, ये CH4 बना, सपोज मैंने हाइड्रोजन को हटा के कोई तो X कंपाउंड डाला तो और एक कंपाउंड बना, ये हाइड्रोजन को भी हटा के कोई तो Y कंपाउंड लिखा और एक नया कंपाउंड बना। सो मेनी 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 पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। अगर इसके साथ में और एक सपोज कार्बन ही जोड़ दो और इधर सब सम Z कंपाउंड एलिमेंट डाला एंड देन इधर O डाला कोई तो ऑक्सीजन में और एनी कंपाउंड, so there are so many possibilities of new compounds forming. अभी Na के केस में क्या है, Na का कितना वैलेंसी है, 1 है, बेचारा सिर्फ NaCl ही बना है या whatever NaF ही बना है, बट कार्बन के 4 वैलेंसीज है तो वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकता है। This is first point. Second point is a new and a very important term, exam point of view. This 100% will come either in prelims or boards, either in name the following or in define or identify the term. It goes by the name catenation. Definition read करते हैं, then we will discuss. Catenation, tendency of an element to form chains of identical atoms. क्या है? Tendency of what? Of element to what? To form chains. Chains is an important word. Chains of identical atoms.
tendency of elements to form chains of identical atoms is called catenation. अभी ये क्या है समझते हैं. Have you ever seen सोडियम का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हो? सोडियम कभी खुद के साथ मिलता है क्या? नेवर. मेटल है, इसको नॉन मेटल के साथ ही मिलना पड़ेगा. सो बट कार्बन का ये स्पेशल केस है जिसमें कार्बन कैन लिंक इटसेल्फ एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स. अनलिमिटेड कार्बन है, कितने भी कार्बन आने दो, एक साथ आने दो, बनते जाएगा नॉट. सो दिस इज. और ऐसा नहीं ऐसे ही बनेगा, वी कैन मेक दिस वे ऑल्सो. चेन्स है, किधर भी बना सकते हैं चेन्स. So this is catenation. Tendency of element to form chains of identical atoms is called catenation. ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ. Just remember these few examples. सोडियम ऐसा नहीं बनता, सिर्फ कार्बन 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 एंड n number of कार्बन के साथ it can make chains. And remember this definition. Definition is very important. Okay. तो ये हुआ कैटेनेशन. ओके. Now we move to the next point. Next point is isomers. It forms isomers, but I won't discuss this now. We'll do it when we'll do isomerism. This is a linked topic with that. Isomerism आ जाएगा next video, or maybe in this only I don't know. Okay, so anyways, I won't follow the textbook का pattern जो है. So if you are sitting with the textbook then थोड़ा ऊपर नीचे होगा, but at the end everything would be covered, so don't worry. So now organic compound को we can divide into two branches. So first branch is aliphatic. नाम सुन लो, याद रखो चाहिए तो. Aliphatic compounds. This is generally not tested, and this is aromatic compounds, also called as cyclic. I guess textbook में textbook has given cyclic compounds. So aliphatic के there are 3 types. Just remember, don't go in the depth of this. So aliphatic, we'll first do aromatic के 2 types. It is homocyclic. Homo means same, homogeneous mixture, same mixture. So होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन एटम्स के साथ ही बनता है. मतलब जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन इज C6H6. ये एक बार बोर्ड में आया था, MCQ या कुछ तो था, बट दिस हैड कम वंस बेंजीन का फॉर्मूला. वेरी स्मॉल थिंग गिवन, बट दे हैड आस्क्ड दिस. सो जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऐसा है, होमोसाइक्लिक. डोंट कॉल इट एज हाइड्रोकार्बन, जस्ट कॉल्ड इट होमोसाइक्लिक. देन वी हैव हेटेरोसाइक्लिक. हेटेरोसाइक्लिक में there are may have carbon, nitrogen, phosphorus, etc. Example is pyridine, C6H5N. ये एक H हट के N आ गया. This is what I was showing up. अभी देखो, ये कार्बन मैं यहाँ पे जो बता रहा था वो यही था. सी मैं अगर मैं एक को भी हटा के कुछ तो और लिखूं, अभी इधर हाइड्रोजन है, सपोज इसको हटा, सपोज इधर 6 कार्बन होते और एक हाइड्रोजन को सिर्फ मैं हटा के N लिखूं तो बन गया pyridine. और एक को हटा के कुछ तो और एक X लिखूं और एक कंपाउंड बनेगा. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन देयर. दिस इज अ गुड एग्जांपल कि व्हाई देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स, क्योंकि एक वैलेंसी से पूरा कंपाउंड बदल जाता है. And now in aliphatic we have in aliphatic we have 3 types. So these are hydrocarbons.
Broadly two types, which we divided into three: saturated, saturated में comes alkanes. What क्या है alkanes सब बताऊंगा, सिर्फ अभी सुन लो, then we will go ahead. एंड वी हैव अनसैचुरेटेड. इसका नाम सैचुरेटेड क्यों है, अनसैचुरेटेड क्यों है, सब कुछ है. डोंट वरी, अभी थोड़ा ऊपर से जा सकता है, बट जस्ट कीप कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. You will come to know it. Alkenes and alkyne. So this is the broad type and this is the subtypes. Saturated में है alkane, alkene and alkyne. Okay, so now we move ahead. अभी क्या है ना, वॉट आर alkane, alkene and alkyne, उसके बारे में थोड़ा बात कर. ये इतना ही था क्या, पीरियड होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक उतना ही है. इट इज नॉट मच इन डेप्थ राइट नाउ. वी हैव टू स्टडी alkane, alkene, alkyne. Now the next term which comes is homologous series. Homologous series. Homologous series. So homologous series can be defined as series of organic compounds where successive elements differ by a CH2 group. Differ by CH2 group. Okay. So they differ by CH2 group and they follow regular structural pattern. अभी हम समझेंगे क्या है. So first series we learn is alkane. अभी alkane क्या है? Alkane are those compounds which have general formula CnH2n plus 2 plus 2. Remember, where suppose n is equal to 1 डालेंगे, so we will get CH4 methane. n equal to 2 डालेंगे, we will get C2H6. What is C2H6? Ethane. This is methane. Before that, we will learn the suffix or prefix. I don't know. जो पहले कहते हैं उसे वो prefix होता है, suffix होता है. I don't know. Myth, it, whatever is before the word, I think prefix होगा. So if there is one carbon, we call myth. 2 carbon, we call eth. 3 carbon, we call prop. 4 carbon, we call bute. 5 carbon, we call pent. And 6 carbon, we call hex. इसके आगे भी सेप्ट होगा, ऑक्टा होगा, उस पर नहीं जाना है, वो सब नहीं है. हमें 5 तक ही याद रखना है, 6 की भी जरूरत नहीं है. 5 पेंट तक याद रखना है. 1 कार्बन मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स. बस दैट्स इट. सो ओके, अभी n इक्वल टू 3 अगर हुआ, n इक्वल टू 3 हुआ तो इसका फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूँ, CH4 C2H6. अभी N3 में बनाओ, खुद ट्राई करो, सोच के ट्राई करो. CnH2n plus 2 क्या बनेगा? C3H8. सो लेट अस मेक C3 और सब जगह पे हाइड्रोजन डाल दो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ना ये, इसलिए. So main thing about alkane is that they have single covalent bond between कार्बन कार्बन एटम्स. ये इंपॉर्टेंट है. कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड.
आगे किधर केस हो सकती है जिधर किसी और के बीच में डबल बबल है, बट कार्बन के बीच में अगर सिंगल है, इट इज एन अल्केन. ओके. So single covalent bond between carbon-carbon atoms is alkane. So if you look carefully, everywhere we have single covalent bonds only. Okay, fine. N इक्वल टू 4 का भी बना देते हैं. नाम क्या होगा इसका? नाम है प्रोपेन. इसका नाम है प्रोपेन. प्रोपेन. अभी N इक्वल टू 4 पे बनेगा C4H10. इसका नाम वी विल गिव एज ब्यूटेन. अल्केन के लिए एन सफिक्स सफिक्स प्रीफिक्स वॉटेवर एंड में जो आता है एन डालेंगे और उसके पहले नंबर ऑफ कार्बन. एक कार्बन अल्केन मीथेन, दो कार्बन अल्केन इथेन, तीन कार्बन अल्केन प्रोपेन, चार कार्बन अल्केन ब्यूटेन. सो चार कार्बन बनाते हैं एंड एवरीवेयर विल पुट हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. C4H10 ये बना हमारा ब्यूटेन. पेंटेन भी बना सकते हो सिमिलरली, दैट यू मेक इट एंड नॉट. ओके. now we have now we have second series. अभी एक सेकेंड. आई डोंट डू. ओके. सो क्या मैंने कहा था? देखो, पहले CH4 हुआ, C2H6 हुआ, C3H8 हुआ, C4H10 हुआ. बराबर. इसका क्या था डेफिनेशन? होमोलॉगस सीरीज, रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न एंड डिफर बाय CH2 ग्रुप. सबका स्ट्रक्चर तो सेम है, सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन सब जगह, स्ट्रक्चर सेम हो गया. नाउ जस्ट चेक. इसका मास कितना है? 12 प्लस 14 16. इसका मास कितना है? 24 प्लस 30 24 प्लस 6 30. इसका कितना है? 36 प्लस 8 44. इसका कितना है? 48 प्लस 10 58. सब में डिफरेंस कितना है? 14 14 14. और 14 क्या होगा? CH2. That's why it is a homologous series, because successive elements of the series, alkane series में क्या आते हैं? मीथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन. Successive elements are differing by a CH2 group, which makes it a homologous series. Okay, now we have second series, which is alkene. Alkene में there is a double covalent bond between कार्बन कार्बन एटम्स. ये मैंने डैश बनाया, ये बॉन्ड नहीं बनाया. कार्बन कार्बन इसलिए मैंने डैश जैसा. सो वी राइट इट दिस वे, कार्बन कार्बन. ओके. एंड इसका वो एंड का विल बी इन. अल्कीन है ना, तो इन. अल्केन के लिए एन, अल्काइन के लिए आइन. यस, करेक्ट. इसके अभी बना देते हैं स्ट्रक्चर्स. So for n equal, इसका okay, general formula for this GF, general formula is CnH2n. अभी आप ही सोचो कि मुझे अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, तो मैं अगर एक ही कार्बन लूंगा, तो कैन आई मेक double bond with another carbon with only one carbon? Not possible, no? That's why n equal to 1 पे there is no case, no alkene. N equal to 2 is C2H4. So ethane. Ethane is the first element of alkene. मीथीन, oh I'm sorry, ये इथीन है, माय बैड, सॉरी. इथीन.
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्कीन, मीथीन एज सच कुछ बनता ही नहीं है। नाउ n इक्वल टू 3 पे क्या बनेगा, C3H6, दिस इज प्रोपीन। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वी आई विल टीच यू टू मेक दिस स्ट्रक्चर नाउ। ये देख लिया ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्कीन, वो अभी हम रिमूविंग। नेम इज इथीन एंड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले कार्बन लिखो, इथीन है, दो है। हाउ यू विल मेक अ स्ट्रक्चर, इथीन बोला, इथ बोला, दो कार्बन लिख लो, ठीक है। अभी इन बोला है, इन मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सो डबल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बना दो। अभी हाइड्रोजन डालो, हाइड्रोकार्बन है तो बाकी सब तो हाइड्रोजन होंगे। अभी देखो इसके दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो क्या मैं सब जगह पे हाइड्रोजन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो ना, इधर दो है और इधर अगर तीन आएंगे तो पांच हो जाएंगे, पांच की तो जरूरत नहीं है ना। सिमिलरली here also I will put only 2, this makes it C2H4। ethene, propene, pro, prop, prop is what, prop is 3, so तीन कार्बन as it is लिख दो। इन बोला है तो डबल बॉन्ड, अभी पहले पे बनाओ दूसरे पे बनाओ, इट डजेंट मैटर, एक ही बनाओ, पर दो दो मत बनाओ। why it doesn't matter will you'll understand it in maybe next or next to next video। अभी बेसिक सिर्फ ध्यान रखो, सुनो, नॉलेज गेन करो सिर्फ। अभी इधर दो है तो कार्बन के कितने बचे, दो बचे, तो मैं दो हाइड्रोजन लगा देता हूँ। अभी इधर दो और एक तीन हो गए, तो इसको क्या एक ही चाहिए, एक ही एच, इसका एक ही हुआ है तो इसको तीन लगेंगे। 1 2 3 4 5 6, C3H6। So similarly butane, pentane, butane I'll make n equal to 4 पे we have C4H, it is butane। इसका भी स्ट्रक्चर भी ब्यूट बोला, ब्यूट मतलब चार कार्बन लिख दो, चार कार्बन लिख दो। अरे यार वापस से मिस्टेक, यू डोंट हैव टू मेक दिस मिस्टेक। ब्यूटीन है, ब्यूटीन, ब्यूटीन नॉट ब्यूटेन। ओके सो चार कार्बन लिख दो, डबल बॉन्ड बनाओ पहले पे, अभी के लिए पहले पे ही बनाओ, इधर मत बनाओ, वो आइसोमर में हम देखेंगे। इसके दो फिल है तो इसको और दो लगेंगी, इसको दो दे दो, इसके इधर सिंगल सिंगल डालो। इसके तीन फिल है, इसको एक ही चाहिए, इसको एक दे दो। इसके दो फिल है, इसको दो चाहिए, दो दे दो। इसका एक फिल है, इसको तीन चाहिए, तीन दे दो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हाइड्रोजन हो गए। फाइन, सो दिस वाज अल्कीन। अब हम थर्ड सीरीज के पास आते हैं, विच इज अल्काइन। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड between of course carbon carbon atoms and written with ine end में। तो सेम लॉजिक, n इक्वल टू 1 होगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एक कार्बन है वो कैसे ट्रिपल बॉन्ड बना पाएगा और एक कार्बन के साथ नहीं बना पाएगा ना। n इक्वल टू 2 पे वी विल हैव इथाइन। इसका जनरल फॉर्मूला इज GF, general formula is CnH2n, CnH2n minus 2. Alkane was CnH2n plus 2. Alkene was CnH2n and alkyne is CnH2n minus 2. Ethyne, let us make ethyne. Let us write ethyne first. C2H4। अभी इथ बोला, दो कार्बन बना दो, बनाया। आइन बोला, ट्रिपल बॉन्ड डाल दो। अभी इसके तीन फिल है तो मुझे इसको और एक देना पड़ेगा ना, टेट्रा वैलेंसी है तो आई पुट हाइड्रोजन। तीन फिल है
का और एक देना पड़ेगा, टेट्रावैलेंसी है, सो आई विल पुट अगेन हाइड्रोजन हियर, दैट मेक्स इट satisfied. So set as C2H2 n equal to 3 पे we will have propine. This is C3H. वो just a second है, मैंने फॉर्मूला गलत लिखा. This will be C2H2. Okay, C2H2 स्ट्रक्चर बराबर बना है, just फॉर्मूला I wrote. Okay, so this will be C3H4. N3 डालो, 2 3 6 minus 2 4. इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? प्रोप है तो 3 कार्बन एटम लिख दो, कुछ मत सोचो, एज इट इज 3 कार्बन एटम लिख दो. अब आगे देखो क्या है, आइन है. अभी आपको सिंपल लग रहा होगा कि ये सिंपल सिंपल के लिए क्यों कर रहे हैं, बट व्हेन अ बिग कंपाउंड विल कम, तो व्हेन यू विल अप्लाई दिस थिंकिंग कि कैसे स्टार्ट करना है, सो इट विल हेल्प दैट टाइम. प्रोपाइन, सो वी हैव 3 कार्ब, आइन है तो 3 लगा दो, फिर 3 है, इसका 4 है तो इसको और 1 लगेगा, 3 है, इस इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है. अभी ये कार्बन सेटिस्फाइड हो गया, अभी ये कार्बन के पास आता है, इसमें क्या है, अभी इसका 1 है, 2 3 4 चारों सेटिस्फाइड, इसका 1 है तो इसमें मुझे 3 देना पड़ेगा, तो मैं हाइड्रोजन 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 ऐसे लगा. Now we make n equal to 4, which is butane. C4H6. कुछ मत सोचो, एज इट इज 4 कार्बन एक ही लाइन में लिख लो. फाइन, 4 कार्बन एक ही लाइन में लिख दो. अभी ब्यूटाइन है तो आइन ट्रिपल बॉन्ड लगा दो. अभी के लिए फर्स्ट इस पे लगाओ, वाई वॉट तो दूसरे पे लगा, क्या होगा सब यू विल कम टू नो शॉर्टली. ट्रिपल बॉन्ड दोनों में सिंगल सिंगल. अभी इसके 3 है तो मुझे इसको 1 देना पड़ेगा, इसके 3 और 1 4 है, सेटिस्फाइड है, इसको कुछ नहीं चाहिए. इसके पास 1 2 है तो मुझे इसको 1 1 देना पड़ेगा, 2 देने पड़ेंगे टोटल. इसके 1 ही है तो मुझे इसको 3 देने पड़ेंगे. समझ रहे हो ना, देने पड़ेंगे ना, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, हाउ टू बैलेंस दैट हाइड्रोजन. क्योंकि लोग क्या अंधाधुंध जिधर भी जगह मिले उधर हाइड्रोजन डाल देते हैं, बट वैसा नहीं है वो. इट इज दिस इज द वे यू नीड टू थिंक. एंड देन स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्रॉस चेक करो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन, यस, C4H6 ब्यूटाइन. Similarly, pentine you can make. So even alkene and alkyne are also homologous series. So if you want, I can show C2H2 alkyne का दिखा रहा हूँ, alkene भी है ही वैसे, C3H4 and C4H6. So C4H6 C2H2 का मास कितना है 26, इसका मास कितना है 40, इसका मास कितना है 54. इसमें डिफरेंस कितने हैं 14 and 14, which is CH2. Okay, so even these are homologous series. So this is it with the first video. इधर ही I'm stopping. ज़्यादा होंगे इसमें, पर what all we did today, just quickly fast I'll just go through once again. पहले तो I introduced the topic organic chemistry में क्या क्या हम सीखेंगे. Then we did for कि then we understood कि पहले की definition क्या थी and now what it is, why it is, because of polythene and all which we can make in labs. then we studied कि हम सिर्फ कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, सोडियम नहीं, पोटेशियम नहीं, सिर्फ कार्बन क्यों, उसके रीजंस है, क्योंकि टेट्रावैलेंसी है, कैटेनेशन है, और एक रीजन यू विल कम टू नो नेक्स्ट क्लास में. फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 पार्ट स्टडी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक नॉट मच इंटरेस्टेड, सिर्फ ये एग्जांपल्स याद रखो, बाकी मेन पूरा फोकस तो इस पे है, हम पे हमारा.
then we did about the prefix suffix, then homologous series and alkane, सबके structures देख लो, practice करो, खुद structures सब निकालो. If you're watching this video, if you have reached, मतलब पूरा देखा है वीडियो, तो once you are done, बंद करो, वीडियो बंद करो एंड बुक पेन लो एंड जस्ट राइट ऐसे कि इधर अल्केन लिखा, अल्केन, फिर इधर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, फिर अल्काइन का लिखा, अल्कीन लिखा, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 पे भी क्रॉस डालो और फिर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 सब बनाओ. फिर उसके बाद अल्काइन लिखो, उसका भी n इक्वल टू 1 पे क्रॉस करो, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3. इसके समझ लो ना, आई एम टेलिंग कि राइट द फॉर्मूलाज एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ही यू विल कम टू नो. इफ यू प्रैक्टिस बेसिक से, तो ही स्मॉल स्टेप्स से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन बी ब्रोकन डाउन, बिकॉज इट वास्ट टॉपिक है. सो वी विल ब्रेक इट डाउन इन स्मॉल स्टेप्स. सो दैट वाज इट. कंटिन्यू द नेक्स्ट.